students. So till now we have already discussed about the different types of endocrine glands. So in today's lecture we're going to discuss the next endocrine gland, that is your pancreas. And already it is pancreas is little bit familiar with all of you. You all have some idea about the pancreas because you have already studied in the chapter of digestion, right? So let us start. First of all, the pancreas is actually derived from the endoderm of the embryo. So we can say the pancreas is endodermal in origin. Location कैसा कहाँ पे रहता है? Where is the location? What is the location? The pancreas lies inferior to the stomach in a bend of the duodenum. Where the duodenum bends, there we can find this. Okay. It is both an exocrine and endocrine gland. This is very, very interesting. That means it is a heterocrine gland. It is having both exocrine part and endocrine part, right? A large pancreatic duct runs through the gland, carrying the enzyme and other exocrine digestive secretion from the pancreatic acinar cell to the small intestine, that we have already studied in the chapter of digestion. And there the role was, and the main focus was the digestion. So the digestive juices that were secreted and it was utilized for the digestion process, right? Now the tissue of the pancreas has, in addition to the acinar cells, group of cells which is called or which is known as islets of Langerhans. क्या कहते हैं उसे? Islets of Langerhans. ठीक है? So today we'll study about the endocrine gland, that is your pancreas, which is a heterocrine gland. That means this gland is having both the part of both the endocrine part and exocrine part, right? So let us discuss what are the exocrine part, what are the endocrine part in the pancreas. The exocrine part is the acinar cell. Okay, and what is its function? It secretes the pancreatic juice which help in the process of digestion, right? And what is the endocrine part then? Endocrine part that is which is produce the hormones, and these are the these hormones are produced by special type of cells, and these cells are actually large in number. Okay, and which are altogether known as islets of Langerhans. The name islets of Langerhans was actually, it is named after the scientist who discovered it. The scientist who discovered his name was Paul Langerhans. On his name we say this part of the pancreas as, or we know this part of the pancreas as islets of Langerhans. Which part? The endocrine part. Okay. Now, what is the number of cells it is having? So there is a possibility of having 1 to 2 million of cells. Okay, 1 to 2 million. The number can range. It ranges from 1 million to 2 million. And each islets, अगर हम सिर्फ एक islets को पकड़े, मतलब सारे islets को एक साथ नहीं. If you take only one islet, that can have, or that can actually accommodate almost 3,000 cells. Okay. Now these cells of islets of Langerhans is actually scattered in the connective tissue of that particular part. So basically क्या होता है? These cells of the islets of Langerhans are actually scattered in the connective tissue, where in the acinar cell. ठीक है? तो acinar cell के अंदर कनेक्टिव टिश्यू के चारों तरफ और कनेक्टिव टिश्यू के एरिया में, जोन में ये जो सारे सेल्स है ये आपका स्कैटर्ड होता है. ठीक है? अच्छा, ये जो साइंटिस्ट थे पॉल लैंगरहंस, इन्होंने डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, जो पार्ट है आपका एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियास वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट नेम पॉल लैंगरहंस इन द ईयर 1869. So please make a note of it, in the year 1869. Okay.
Now, the pancreas is the second largest gland, and it is length. Its length is about 12 to 15 centimeter, and it weight is approximately 85 ग्राम. कितना वेट है इसका? अप्रोक्सीमेटली 85 ग्राम का होता है, और इसका जो लेंथ है वो कितना है? इट इज अबाउट 12 to 25 सेंटीमीटर, राइट? Now, the islets of Langerhans, actually it is having basically 4 kinds of cells. कितने तरह के सेल्स होते हैं इनके पास? 4 तरह के सेल्स होते हैं basically, right? Which are identified in the islets. First is your alpha cell, and what is the percentage of the alpha cell? It is 15% of the total number of means other different types of cells. If you consider all the different types of cells, so it is having its share, that is 15% of alpha cell. We can see in the islets of Langerhans. What it do? It produces glucagon. Okay, and alpha cells are also known as A cell, capital A. Okay, they are also known as A cell. So let me write here. They are also known as A cell or oxyphil cells as well. तो तीन नाम है. अल्फा सेल भी बोल सकते हैं, ऑक्सीफिल सेल्स भी बोल सकते हैं, ए सेल भी बोल सकते हैं. ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट कैटेगरी का सेल कौन सा है? दैट इज योर बीटा सेल. क्या है दूसरा सेल? बीटा सेल. ठीक है, इसका कितना परसेंटेज है? ये आपका 65% होता है. कितना परसेंटेज होता है? ये परसेंटेज मैंने यहां लिखा नहीं है, यू कैन नॉट सी ऑन द स्क्रीन, बट यू प्लीज make a note of it. It is 65%. ठीक है, it is 65%. Right? Now, this beta cells, they produce insulin. ये क्या करते हैं? ये इंसुलिन बनाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, अब ये जो सेल है ना बीटा सेल, इसको हम लोग ना बी सेल भी बोल सकते हैं. जैसे पहले वालों को हमने ए सेल बोला, तो इसे हम बी सेल बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? बी, कैपिटल बी. जो भी हम कह रहे हैं ना अभी, ए सेल वो भी कैपिटल में होना चाहिए, बी सेल वो भी कैपिटल में होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, डेल्टा सेल और कैपिटल डी सेल. ठीक है, डेल्टा सेल क्या है? ये है डेल्टा सेल. इसे हम क्या कह सकते हैं? कैपिटल डी सेल एज वेल. ये है डेल्टा सेल, इसे हम कैपिटल डी सेल भी कह सकते हैं. ठीक है, और इसका कितना शेयर है? 5%, अबाउट 5%. ये क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस somatostatin SS. Then the next one we have, that is your pancreatic polypeptide cells or gamma cell. This is the cell. Pancreatic polypeptide cell भी कहते हैं हम इसे, या PP कह सकते हैं, pancreatic polypeptide cell और gamma cell और PP cells. और शॉर्ट टर्म क्या कह सकते हैं इसको? F cell. ठीक है, ये PP सेल नहीं है, इसको हम शॉर्ट में PP कहते हैं, पॉली पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स. ठीक है, या PP सेल्स भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? F सेल भी कह सकते हैं. तो PP सेल, F सेल, गामा सेल, तीनों नाम है इसके. ठीक है. सो व्हाट इज इट्स फंक्शन? इट प्रोड्यूसेस, और इसका शेयर कितना होता है? 15%. ठीक है, जो F सेल है वो कितना परसेंट होता है? 15%. इट प्रोड्यूसेस दी पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड. क्या बनाता है ये? पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड. ठीक है. Now the beta cells are usually found towards the middle of the islet. बीटा सेल हमें कहां मिलता है? Towards the, डायग्राम हम जब देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको. It is, we can see it is in the middle of the islet. So islets के मिडिल में हमें क्या मिलता है? ये बीटा सेल मिलता है. ठीक है ना? नेक्स्ट, अल्फा सेल कहां मिलेगा? इट इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द आइलेट्स. बीटा सेल बीच में मिलता है, मतलब बीच की तरफ, मतलब सेंटर की तरफ, और अल्फा सेल पेरिफेरी में, और जो आपका डेल्टा सेल, डी सेल और एफ सेल है वो कहां मिलता है? वो स्कैटर्ड रहता है, इधर उधर फैला हुआ रहता है. ठीक है. सो दीज आर स्कैटर्ड. कौन से सेल स्कैटर रहते हैं? डी एंड एफ सेल. सो प्लीज मेक ए नोट. See, all the notes are not available on the screen. So whenever I am discussing some points or some extra points, you please make a note of it, please. Okay. Now we'll discuss one by one about the different types of the cells, different types of the cells of islets of Langerhans. And before that,
we'll see the diagram, a basic diagram. See, if you take a section of the pancreas, then we can see this is the arrangement. ऐसा होता है, ठीक है ना, इस तरह के आपको सेल रहेंगे, ठीक है, ऐसे. So these are pancreatic acini. मैंने कहा, हमने पढ़ा था ना शुरू में कि क्या होता है, ये जो चार तरह के सेल हमने देखे वो कहाँ रहता है, कनेक्टिव टिश्यू में, जो कि अपने सेल के आसपास होता है, वहां रहता है, ठीक है. तो आप ध्यान से देखो, ये सारे क्या है, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब क्या है, एक्टिनर सेल. इसका काम क्या है, पहले पढ़ा था हमने, इसका काम, मेन काम क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करना. तो डाइजेस्टिव जूस का जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होता है ना, इसीलिए इनका जो नंबर है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली, ठीक है. अब इसको देखो, आइलेट्स और लैंगरेट्स यहाँ पे है, आपको दिखा है एक आइलेट्स, ये एक आइलेट्स हमने देखा है. तो ऐसे इस तरह करके बहुत सारे आइलेट्स होते हैं, तो हम एक ही आइलेट्स को देख रहे हैं. उसमें पहला, जैसे मैंने शुरू, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पेरिफेरी में कौन रहता है, अल्फा सेल रहता है. उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, बीटा सेल, ठीक है. उसके बाद आप देखो मिडिल में कौन, हमने देखा था कि जो बीटा सेल है वो मिडिल की तरफ रहता है, देखो बीटा सेल मिडिल की तरफ है. उसके बाद डेल्टा और एफ सेल वो स्कैटर्ड है, देखो यहाँ पे है डेल्टा सेल, फिर यहाँ पे आपका जो एफ सेल है तो यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, तो ये स्कैटर्ड है. सो मेनली अल्फा सेल जो है पेरिफेरी में है, और मिडिल की तरफ कौन सा है, बीटा सेल है. बाकी जो आपके सेल है, जो आपके डेल्टा सेल या हम जिसे एफ सेल कहते हैं, डी सेल कहते हैं, दोज आर एक्चुअली प्रेजेंट और स्कैटर्ड in the area of the islets of Langerhans. Okay, so we'll discuss the next. Yeah, now we'll discuss about the hormones of the pancreas and their role. अभी जो हमने जो चार तरह के सेल के बारे में पढ़ा, ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस में होता है, तो अभी इनके ये जो हार्मोन्स लिस्ट करते हैं ना, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनका क्या फंक्शन है, उनका क्या रोल है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है. So first is the islets of Langerhans have four types of cells. पढ़ लिया हमने, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, डेल्टा सेल, ठीक है ना. अब उसके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट डेल्टा सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. So delta cell secretes what? Somatostatin. ओके, तो डेल्टा सेल क्या करता है, सोमैटोस्टैटिन सीक्रेट करता है. अब देखो, हार्मोन्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस वो क्या है, दीज आर बेसिकली पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स. आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस जो भी हार्मोन रिलीज करता है या जो सीक्रेट करता है, वो सब क्या है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है. सो कौन से नेचर के हार्मोन है, वो सब पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है. अब देखो नेक्स्ट क्या है जानना है, देखो एक्स्ट्रा ग्लूकोज is actually converted into glycogen and this conversion is regulated by insulin. इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन किससे कौन बनाता है, इंसुलिन बीटा सेल बनाता है, ठीक है ना. तो अभी क्या करता है, इसका मेन काम क्या है, इट कन्वर्ट द कन्वर्जेंस और इट इज द ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है. वो जो कन्वर्शन का जो रेगुलेशन है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, वो इंसुलिन करता है, ओके. And that is why it is also known as hypoglycemic hormone, क्योंकि ये आपके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और स्टोर करने में मदद करता है, तो इसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन. क्यों हाइपोग्लाइसेमिक, क्योंकि ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में घट जाता है, क्योंकि हम वो क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन बना के हमारे मसल्स में, हमारे लीवर में स्टोर कर देता है. इससे क्या होगा, ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है ब्लड में घट जाता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, ठीक है. करता क्या ये, इट रिड्यूसेस द ब्लड शुगर लेवल. व्हाट इट डू, इट रिड्यूसेस द ब्लड शुगर लेवल, ओके. नाउ if there is less glucose or sugar in the blood, then what will happen, then the glucagon it will actually come in action, it will actually do the reverse of the insulin. What it will do, it will break down the glycogen to release the glucose in the blood, ठीक है. और वो कौन बनाता है, अल्फा सेल बनाता है. तो अल्फा सेल क्या बनाता है और क्या सीक्रेट करता है, ग्लूकागॉन. बीटा सेल क्या करता है, इंसुलिन. गामा सेल वो क्या करता है, ये एक प्रिकॉसर जिसको हम कहते हैं आपके पीपी सेल, जिसने हमने देखा था, वो एफ सेल. और डेल्टा सेल क्या करता है, डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन रिलीज करता है. तो ग्लूकागॉन का इंसुलिन क्या है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और ग्लूकागॉन क्या करता है, उल्टा करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है. तो ये क्या करता है, ब्लड शुगर को बॉडी में, ब्लड में बढ़ाता है, ब्लड शुगर लेवल को बॉडी में बढ़ा देता है, ठीक है.
Now these two hormones actually acting as antagonistic to each other, है ना? These two hormones are acting on the same reaction कर रहे हैं but in opposite direction, है ना? पहले केस में हमने क्या देखा, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो एक सेम रिएक्शन है। और नेक्स्ट केस में ग्लूकागॉन क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट, रिएक्शन सेम है लेकिन काम उल्टा हो रहा है, डायरेक्शन उल्टा हो रहा है ना? And that is why we have like that is why we can say that they have this two hormones, insulin and glucagon, they have antagonistic action on each other, उल्टा एक्शन करता है एक दूसरे का, ऑपोजिट एक्शन, ठीक है? अच्छा, नॉर्मल ब्लड शुगर का लेवल क्या है, हम जब फास्टिंग में टेस्ट करते हैं वो है 80 to 100 mg of glucose per 100 ml of blood when it's a normal value when you are fasting. Okay, if this is maintained, that means अगर हमारे बॉडी में ये ग्लूकोज का वैल्यू जो हमने अभी देखो आपके स्क्रीन में भी होगा, अगर ये हमारे ब्लड में मेंटेन है, मतलब 80 से 100 mg ऑफ ग्लूकोज पर 100 ml ऑफ ब्लड, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दो हार्मोन, कौन से हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक से काम करने, दे आर वर्किंग नॉर्मली, राइट? नाउ वी विल डिस्कस दिस हार्मोन इंडिविजुअली इन डिटेल, राइट? फर्स्ट वी विल डिस्कस द इंसुलिन। See, insulin, it is, like in the beginning of the chapter also मैंने बताया था कि insulin was the first hormone which was extracted from the pancreas of dog, बताया था आपको, शायद याद होगा। So the insulin है, it is very well known, it's well known and it's like one of the few first hormones which was known to mankind, okay? और सीक्रेट कौन करता है, पहले बताया बीटा सेल करता है, कहां से, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से। नेचर क्या है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, जो ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो भी हार्मोन रिलीज करते हैं वो क्या नेचर के हैं, हमने पहले बताया, पहले पढ़ा, पॉलीपेप्टाइड नेचर के हार्मोन है, ठीक है? इसी के लिए इसका जो फंक्शन होता है ना, ठीक है, और इसी के लिए इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं, या तो हम इसे क्या कहते हैं, एंटी डायबिटिक फैक्टर। क्यों? क्योंकि वो ग्लूकोज को घटा देता है, ग्लूकोज का लेवल बॉडी में घटा देता है, इसलिए डायबिटिक कॉज नहीं करता। ये क्या करता है, इट्स वर्किंग एज एंटी डायबिटिक फैक्टर, ठीक है? And it also works as it actually acts on the three target tissue or organ. कहां पे ये काम करता है, बेसिकली कहां पे इसका टारगेट सेल्स है, टारगेट ऑर्गन क्या है इसका इंसुलिन का, मेन है आपका लीवर, दूसरा है आपका मसल्स, तीसरा है एडिपोज टिश्यू। तो ये तीन जगह पे काम करता है बेसिकली। मैंने अभी कहा ना थोड़ी देर पहले कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन बनाता है, फिर कहां पे हम लोग स्टोर करते हैं उसको, मसल में या तो लीवर में, ठीक है? So basically functions क्या है, so I have listed out there are some basic functions which are listed out under the insulin। क्या क्या फंक्शन है इंसुलिन के बेसिकली वो डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, it increases the utilization of glucose, ग्लूकोज का जो यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम कर देता है, ठीक है ना? दूसरा क्या है, it converts the extra glucose into glycogen, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है बॉडी को उसको क्या करता है, ये कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन बनाता है, फिर स्टोर कर देता है, स्टोर करने में मदद करता है। नेक्स्ट, इट डिक्रीजेस द ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है? सो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है प्रोसेस, उसको ये कम कर देता है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, इट आल्सो कन्वर्ट्स द एक्सेस ग्लूकोज इनटू फैट एंड स्टोर्ड इनटू द एडिपोज टिश्यू, एंड दैट्स व्हाई दैट प्रोसेस इज आल्सो नोन एज लाइपोजेनेसिस। क्या कहते हैं इसे, लाइपोजेनेसिस। तो फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अगर फैट खाते हैं, जो एक्स्ट्रा फैट है वही हमारे एडिपोज टिश्यू में जमा होता है, ऐसा नहीं है। अगर हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज भी हम खा लेते हैं या फिर हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, और होता भी है एक्चुअली, वो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू फैट एंड देन इट विल बी स्टोर्ड इनसाइड इन द एडिपोज टिश्यू, और वो कौन करता है, इंसुलिन करता है, ठीक है? और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं लाइपोजेनेसिस। क्या कहते हैं, लाइपोजेनेसिस, ठीक है? Now because of the glucose is converted into fat and there is no breakdown of the fat is taking place, then because of that there is a decrease in the ketone bodies। अब देखो फैट जो हम जब स्टार्व करते हैं ना, तो हमारे बॉडी में पहले जो बेसिक जो हमारे पास जो एनर्जी सोर्सेस है उसमें सो मेन जो है आपका फैट सोर्स होता है। तो जब हम फैट को बर्न करते हैं, ब्रेक करते हैं, एनर्जी में मिलता है, तो उस प्रोसेस में कीटोन बॉडीज रिलीज होता है। तो अब इस केस में क्या हो गया,
फैट तो सब डिपोजिट हो रहा है, जमा हो रहा है, तो कोई कीटोन बॉडीज हमारे बॉडी में नहीं होगा। लेकिन अगर ये फैट ब्रेक होने लग गया, अगर हम इसे तोड़ने लगे एनर्जी के लिए, तो हमें हमारे जो बॉडी में क्या होगा, कीटोन्स हमें मिलेंगे। स्पेशली यूरिन के साथ कीटोन जो होगा वो बाहर निकलेगा। तो यूरिन में जो कीटोन का कंसंट्रेशन है वो ज्यादा बढ़ जाता है। इसी को हम ना दूसरे तरीके से कहते हैं इसको कीटोसिस। क्या कहते हैं इसे? कीटोसिस। ठीक है, अगर हमारे यूरिन में कीटोन ज्यादा है, मतलब स्टार कर रहे हैं हम लोग और फैट बर्न हो रहा है, और उसमें इसके लिए हमारे बॉडी में ब्लड में कीटोन ज्यादा है, अल्टीमेटली यूरिन में भी कीटोन हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और यूरिन के साथ निकल जाता है और इनमें हमें मिलता है कीटोन बॉडीज, तो हम उसे कहते हैं कीटोसिस। ठीक है, अब अगर कम सिक्रीशन होगा इंसुलिन तो क्या होगा, वो भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, कम सिक्रीशन मतलब अगर नहीं ठीक से सिक्रीट हुआ तो क्या होगा, अगर नहीं होगा तो मेंटेन नहीं कर सकते हम अपने बॉडी में अपना ब्लड शुगर लेवल, है ना। सी, इट लीड्स टू अ कंडीशन नोन एज डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, तो फिर डायबिटीज हो जाएगा ना, क्योंकि ग्लूकोज का जो हमारे बॉडी में जो हमारे ब्लड में जो कंसंट्रेशन है एक्स्ट्रा है ग्लूकोज, वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ग्लाइकोजन में। अगर कन्वर्ट नहीं हुआ ग्लाइकोजन में, तो हमारे बॉडी में जो शुगर का लेवल है वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो हमें डायबिटीज हो जाएगा, और इस तरह के डायबिटीज को हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटिस और मेलिटस, जो भी कहो आप। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। अब देखो, इंसुलिन ठीक से नहीं बना, किसी कारणवश जो आपकी सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, ठीक है ना, वो इंसुलिन नहीं बना पाए ठीक से, और इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए हमारे बॉडी में जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस में जो सेल्स हैं जो इंसुलिन वो बनाते हैं, इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, जो कि आपका बीटा सेल है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए इंसुलिन ठीक से बन नहीं रहा है। इसीलिए जब इंसुलिन बॉडी में ठीक से बन नहीं रहा है तो क्या होगा, ग्लूकोज को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा ग्लाइकोजन में, तो बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, वो रह जाएगा ब्लड में। वैसे ही उस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस, और because it is depends on the secretion of or the concentration of the insulin, इसीलिए हम इसे कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या होता है, हमें क्या पेशेंट में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो भी हम देखेंगे, उनके ब्लड का क्या कंडीशन होता है, शुगर का लेवल क्या होता है हम देखेंगे। द ब्लड शुगर लेवल इंक्रीजेस एंड इट कैन एक्सीड 150 mg ऑफ पर 100 ml ऑफ ब्लड। मतलब पहले देखा था नॉर्मल लेवल क्या था 80 to 100, अभी देखो कितना हो गया, बढ़ के 150 हो गया, और इससे भी ज्यादा हो सकता है। किसी को तो 200 भी है, किसी को 180 भी हो जाता है, किसी को 250 भी हो जाता है, इससे भी ज्यादा, वो डिपेंड करता है, किसी को इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन अगर 150 तक चला गया, 100 मतलब 100 से ऊपर जाके 150 तक चला गया, तो हम उसे मान लेंगे कि ये कंडीशन डायबिटीज मेलिटस का है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है। उल्टा जो काम है ना, ग्लूकागॉन जो है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन इंसुलिन अपना काम नहीं कर रहा है। इससे क्या होगा, तो आपके ग्लाइकोजन जो है वो मतलब टूटेंगे, और ग्लूकोज आपके जो ब्लड में है वो बढ़ता रहेगा, है ना। अब इसमें और क्या होता है ना, इसके लिए और एक प्रॉब्लम भी होता है, जो कि है मतलब जो कीटोन बॉडीज है वो भी हमारे जो ब्लड में वो बढ़ जाता है। ठीक है, एंड इससे क्या होगा, इससे कुछ माने लाइक सिचुएशन डेवलप होते हैं पेशेंट में, हमें दिखता है। वो सारे सिचुएशन हम डिस्कस करेंगे। पहला है कि अगर ज्यादा ब्लड में हमारा शुगर ज्यादा है, तो आपने पढ़ा होगा रेनल थ्रेशोल्ड वैल्यू इन द चैप्टर ऑफ एक्सक्रीशन, तो वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है, हमारे यूरिन के थ्रू भी ग्लूकोज निकलना शुरू करेगा। उस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लाइकोस्यूरिया। क्या कहते हैं हम इसको, ग्लाइकोस्यूरिया। इसमें होता क्या है, अगर यूरिन के साथ ग्लूकोज भी निकलना शुरू हो जाए तो हम उस कंडीशन को कहते हैं ग्लाइकोस्यूरिया, और ये डायबिटीज मेलिटस के केस में होता है। ठीक है, और क्या होगा, जैसा भी बताया, कीटोन बॉडीज बढ़ जाएंगे तो कीटोन बॉडीज में निकलेंगे यूरिन से, हम कहते हैं कीटोन्यूरिया। ठीक है, और क्या होगा, इट ऑल्सो इंक्रीज द यूरिन आउटपुट। अब बार बार पेशेंट को मतलब यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर ऐसे उनको शुगर हो गया, उनको अगर डायबिटीज हो गया मेलाइटिस मेलिटस, तो उन्हें बार बार टॉयलेट के लिए जाना पड़ेगा। तो अगर कोई पेशेंट बार बार यूरिनेशन के लिए जा रहा है, इसका मतलब उसके बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है कंटिन्यूसली। अगर वाटर लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या, इट कैन गो एंड द पेशेंट कैन हैव अ कंडीशन ऑफ डिहाइड्रेशन। और जब बॉडी से बहुत ज्यादा पानी निकल जाता है तो हमें बहुत प्यास लगता है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्यास लगता है, क्योंकि बार बार टॉयलेट जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्यास लगेगा, आपको हमेशा प्यास लगता रहेगा।
इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीडिप्सिया. सो दिस ऑल द सिचुएशन कैन लीड्स टू अनदर कंडीशन दैट इज कॉल्ड पॉलीडिप्सिया. ठीक है. और क्या चेंजेस होते हैं हमारे मतलब पेशेंट के बॉडी में? कोलेस्ट्रॉल लेवल भी जो है वो डिक्रीज हो जाता है. ठीक है. कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है? वो भी डिक्रीज हो जाता है. ठीक है. उसके बाद होता है आपका जो ग्लाइकोजन है मसल में, वो भी घट जाता है, क्योंकि ग्लाइकोजन तो टूट रहा है. ग्लूकागन का तो ग्लूकागन अपना काम कर रहा है, लेकिन इंसुलिन अपना नहीं काम कर रहा. तो ग्लूकागन तो ग्लाइकोजन को तोड़ता ही रहेगा, तो ग्लाइकोजन आपके जो मसल में है वो घट जाता है. इसीलिए जो शुगर के पेशेंट होते हैं और वो उनको ना हमेशा they are having lethargic feeling or like they are having feeling of fatigue, less energy, इसी के लिए होता है. ठीक है. Now और क्या होता है? There is also all this condition also lead to one more situation where the patients are having delay in wound healing. इसीलिए आप कहते हैं ना कि अगर शुगर पेशेंट है तो उनको अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो उनका जो रिकवरी है, वुंड हीलिंग का जो कैपेसिटी है, जो स्पीड है, वो कम होता है. इसीलिए शुगर पेशेंट को अगर कट गया तो उसको हील होने में बहुत टाइम लगता है. ठीक है ना. तो ये भी हो जाएगा. और क्या कंडीशन हम देखेंगे पेशेंट में कि उसका जो हीलिंग पावर है, हीलिंग कैपेसिटी है, वो घट जाता है, स्लो हो जाता है. ठीक है. अब देखो उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि मतलब ब्लड शुगर का जो नॉर्मल लेवल है उसको अचीव करना है, बॉडी में उसको मेंटेन रखना है. अगर हम ये मेंटेन कर पाए बाय मेडिकेशन और समथिंग, देन ऑल द प्रॉब्लम व्हाटएवर द प्रॉब्लम वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, वो सब खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा. क्योंकि हम अपने बॉडी में ब्लड का जो ब्लड शुगर का लेवल है, नॉर्मल लेवल है, उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं. इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है. इसीलिए पेशेंट के साथ ये सारे दिक्कत, ये सारे जो कंडीशन है डेवलप हो रहा है. तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज दिस, टू मेंटेन द नॉर्मल बॉडी शुगर लेवल. ओके. और ब्लड शुगर लेवल मोर प्रिसाइसली. ओके. अच्छा, अब क्या होगा ना, समटाइम द इंसुलिन कंसंट्रेशन और सिक्रीशन इज नॉर्मल. कभी कभी क्या होता है ना कि जो इंसुलिन कंसंट्रेशन है और सिक्रीशन है वो नॉर्मल है, बट इट इज नॉट एबल टू कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. अभी एक स्पेशल कंडीशन है ये. अब क्या होता है ना, कभी कभी जो इंसुलिन का कंसंट्रेशन है, सिक्रीशन है, वो सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब नॉर्मल है. लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ सम रीजन द इंसुलिन इज नॉट एबल टू कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. तब इस तरह के सिचुएशन को हम क्या करेंगे? अभी इसमें क्या है, इंसुलिन मतलब डायबिटीज कॉज नहीं कर रहा है, क्योंकि इंसुलिन कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है ग्लूकोज को. पहले क्या था, इंसुलिन का कंसंट्रेशन ही कम था, ठीक से सीक्रेट ही नहीं हो पा रहा है. ठीक है ना. जो सेल्स है आपके, जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के, जो कि आपके बीटा सेल्स है, वो ठीक से इंसुलिन को ठीक क्वांटिटी में, ऑप्टिमम क्वांटिटी में नहीं बना रहा था. इसीलिए नहीं हो रहा था, आपका जो ब्लड शुगर का लेवल मेंटेन नहीं हो रहा था, बढ़ रहा था. अब इसमें क्या है ना, इसमें इस कंडीशन में क्या है, स्पेशल कंडीशन, इसमें जो इंसुलिन का लेवल है या कंसंट्रेशन लेवल है, ऑप्टिमम कंडीशन, ऑप्टिमम जो लेवल है वो ठीक है, मेंटेन है, फिर भी ग्लूकोज कन्वर्ट होके ग्लाइकोजन नहीं बन रहा है. तब इस तरह के केस में भी डायबिटीज होगा पेशेंट को, लेकिन इसका नाम अलग है. पहले हमने क्या पढ़ा था, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज था. अब ये कैसा हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज. इस तरह के अगर डायबिटीज के केसेस हमें दिखे, so those cases are known as insulin independent diabetes. I hope it is clear. Next we'll discuss about other hormones, that is your glucagon and somatostatin. Glucagon और somatostatin हमने लगभग डिस्कस कर भी लिया है, हमें पता भी है. अच्छा देखो, ग्लूकागन भी कहां से सिक्रेट होता है, सोमैटोस्टैटिन कहां से सिक्रेट होता है? ग्लूकागन में सिक्रेट होता है अल्फा सेल करता है, सोमैटोस्टैटिन कौन करता है? डेल्टा सेल करता है. इसका मतलब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से सिक्रेट होता है ना. एंड ग्लूकागॉन स्टिमुलेट्स द लीवर टू कन्वर्ट द स्टोर्ड ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज. अब ग्लूकागॉन का मेन फंक्शन क्या है? इट कन्वर्ट द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज. पहले हमने पढ़ा है कि ग्लाइकोजन जो भी हमारे बॉडी में जमा है, मतलब लीवर में, स्मूथ मसल में, उसको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करके ग्लूकोज बनाना है. ये इसका मेन काम है. ठीक है. इसीलिए हम इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, एक इसका स्पेशल नाम है इसके लिए, क्योंकि ये इंसुलिन के खिलाफ काम करता है, ऑपोजिट में काम करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं एंटी इंसुलिन हार्मोन एज वेल. इसका नाम क्या है दूसरा? एंटी इंसुलिन हार्मोन. ठीक है ना. अब अभी हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था, तो यहाँ पे फिर से बताऊंगा मैं आपको कि इसका टारगेट जो ऑर्गन्स है या टिश्यू है वो कौन सा होता है ग्लूकागन का. बेसिकली होता है जो मसल्स, एडिपोज टिश्यू या लीवर, क्योंकि यहीं पे ग्लूकोज जो आपके ग्लाइकोजन है वो स्टोर्ड रहते हैं. ठीक है.
और ये करता क्या है, इट इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हाइपरग्लाइसेमिक। ठीक है, इसीलिए हम इसे कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। जैसे इंसुलिन क्या था, हाइपोग्लाइसेमिक था, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हाइपरग्लाइसेमिक। ठीक है, ये बढ़ाता है, इंसुलिन घटाता है, उल्टा। ठीक है, तो हम और बाकी जो फंक्शंस है, I have listed out the functions in point wise, so we'll discuss, we'll see it again। तो फंक्शन क्या है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है, उसमें ग्लाइकोजन बनते हैं, उसके बाद ग्लाइकोजन को ये क्या कर देता है, ग्लूकोज बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट, मतलब हम इंसुलिन जो है उसके बारे में नहीं, ग्लूकोगन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। It also promote the formation of glucose from other substances like amino acids, lactic acid, etc. अब देखो ये जो ग्लूकागॉन है ना, ये सिर्फ ग्लाइकोजन से ही ग्लूकोज नहीं बनाता, ये दूसरे जो हमारे बॉडी में हमारे जो दूसरे सब्सटेंसेस है, जैसे अमीनो एसिड्स है, लैक्टिक एसिड है, हाँ, इनसे भी ये इसको भी इनको भी कन्वर्ट करके ये क्या कर सकता है, ग्लूकोज बना सकता है। कौन, ग्लूकागॉन। ठीक है, एंड ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहते हैं हम इसे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट, so what is the next? So the next is this, अभी इसी ये सब कारण जो अभी फंक्शन है ग्लूकागॉन का, तो ये अल्टीमेटली कर क्या रहा है, इट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग द ब्लड शुगर लेवल इन आवर बॉडी। ठीक है, सो द सिंपल देयर इज अ सिंपल like diagrammatic representation, so you can write it। so आप देख सकते हो ग्लूकोज से ये क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन बना रहा है, फिर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना रहा है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कौन बनाता है, ग्लूकागॉन, और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कौन बनाता है, इंसुलिन। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो, अब कुछ हम कंडीशन और कुछ चीजें हम और पढ़ेंगे इसके बारे में। पहला आएगी, अगर ज्यादा इंसुलिन हो जाए बॉडी में तो क्या होगा, हमने तो पढ़ा था कम हुआ तो क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन पढ़ा, अगर ज्यादा हो गया तब क्या होगा। सो देखो, अब ज्यादा हो गया ना तो हम उसे कहते हैं इंसुलिन शॉक। क्या कहते हैं उसे, इंसुलिन शॉक। अब ये जो कब होता है, इफ अ पर्सन डज नॉट ईट एनीथिंग, तब ये होता है। ठीक है, अगर पेशेंट कुछ खाना नहीं खा रहा है, ठीक है, मतलब इंसुलिन इंजेक्शन के बाद, मान लो ये एक्चुअली ये कंडीशन किनके लिए है ना, मतलब ये स्पेशल कंडीशन हम देख सकते हैं जब डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनके लिए, जिनको इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है हमेशा। तो मान लीजिए कि हमने इंसुलिन का इंजेक्शन दे दिया है पेशेंट को, ठीक है ना। अब इंसुलिन का अगर इंजेक्शन दे दिया है तो इसका मतलब क्या है, जो भी आपके ब्लड में एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होगा वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में। और अगर पहले से ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है, मतलब पेशेंट ने नहीं खाया, तो ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होगा ठीक से, तो फिर क्या होगा, इसे हम कहते हैं इंसुलिन शॉक। ठीक है, तो सडनली इंसुलिन का कंसंट्रेशन बढ़ गया लेकिन अवेलेबल ग्लूकोज ही नहीं है जो कि कन्वर्ट करना है ग्लाइकोजन, इसे बोलते हैं इंसुलिन शॉक, इस कंडीशन को। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा कंडीशन क्या है, लेस इंसुलिन वुड लीड टू इंक्रीज इन द ब्लड शुगर लेवल नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया और डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, वो जो हमने पढ़ा था अभी, तो उसका ये समरी है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट हार्मोन वी नीड टू डिस्कस हियर, then I will also discuss some other special one, the last hormone one, extra hormone also, which is not in our syllabus, even though I need to give you the information about them because it's a small thing, you need to know that as well, right? Now the somatostatin secreted by delta cell, from where, islets of Langerhans. क्या function है इसका, it inhibits the secretion of insulin and glucagon, okay, and it is also peptide hormone। अब इसमें क्या होगा, सिंपल अच्छे से समझिए। अब इसमें देखो अब क्या होता है कि इंसुलिन सिक्रेशन होना स्टार्ट हो गया, कहां से, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से। अब इंसुलिन कौन सिक्रेट करता है, अल्फा सेल सिक्रेट करता है, ठीक है, सॉरी बीटा सेल सिक्रेट करता है, और ग्लूकागॉन कौन सिक्रेट करता है, अल्फा सेल सिक्रेट करता है। अब इनका जो ऑप्टिमम क्वांटिटी है, नॉर्मल कंसंट्रेशन है ब्लड में जो होना चाहिए, उससे तो ज्यादा सिक्रेट नहीं करना चाहिए। तो जब ऑप्टिमम लेवल रीच हो जाएगा तो उसे बंद करना पड़ेगा ना सिक्रेशन को,
कि भाई अब आगे और सिक्रीशन नहीं करना है, तो वो कौन करता है, वही सोमैटोस्टैटिन करता है। किसके केस पे, दोनों केस में। ग्लूकागॉन का भी कंसंट्रेशन इनहिबिट कर देता है, इसका सिक्रीशन है इनहिबिट करके नॉर्मल लेवल को मेंटेन करता है। इंसुलिन के केस में भी ये सेम काम करता है, ठीक है। I hope it is clear. Now we will discuss some extra points. So from there onwards, I do not have any pages to show you. So you have to listen carefully and you have to write whatever I am discussing with you. So listen carefully and write. Now the next is that pancreatic polypeptide hormone, that is also known as PP hormone, or it is also known as F. Right? F cell or PP cells or pancreatic polypeptide cells, they are secreting pancreatic polypeptide hormone, PP hormone. ठीक है? Okay. It appears that the pancreatic polypeptide inhibits the release of digestive secretion of pancreas. Okay. तो हमें अभी तक ये मतलब श्योरिटी नहीं है, मतलब साइंटिस्ट आर नॉट श्योर, बट ये अभी तक जो भी हमने रिसर्च किया है तो हमें ये समझ में आया है कि ये एक्चुअली जो करता क्या है, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ये एक्चुअली पैंक्रियाटिक जूसेस को, इसका जो रिलीज है इसको कंट्रोल करता है, इसको इनहिबिट करता है, ठीक है। जैसे ग्लूकागॉन और इंसुलिन को कंट्रोल करता है कौन, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। सो दैट वाज अ स्मॉल थिंग यू नीड टू नो। अच्छा, अब एक्स्ट्रा जो है okay, so I think this is enough. So by this we have finished the gland, that is your pancreas. So in the next class or in the next lecture we'll discuss, I'll try to finish the gonads, that is your testes and ovaries, and along with the testes and ovaries I will also discuss with you the accessory glands, okay, so placenta as well, right? So we'll try to finish the chapter in the next lecture. Till then, take care, be safe, stay at home, study well. Thank you. We'll meet in the next lecture.